So, what we were doing yesterday, we were creating table. How to create table? What are the different options? What are the different type of constant we can create? So, what was the syntax for it? I'm just repeating. Uh, there is one very interesting command in MySQL where you can actually check with which code the table was actually created. You can simply see it from here. First, I just want to see what tables I have. No? So we are just listing the data, what are the databases available and what database we yesterday created. Uh, you can do show data. Oh, sorry. So databases, and yes, we have created EMP DPT 99. I remember. Use EMP underscore DPT 99. So that is what we have created, and here we want to see what tables we have created yesterday. Show tables. So we have created department, employee, and we have also created a small products table. Okay, so what was the structure of the table? How can we see the structure of the table? This was the describe command. Just write the four character of the describe. You can write the whole describe as well. Uh, 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 I am describing describe. No, describe DPT. Yeah. So this is the structure of DPT table. Department number, integer. That was our primary key. Department name and location. What are the structure of the employee? DESC So what was the command with which we have created it? So we had this script yesterday that was where we were using, but here I will be using another command with which we can see with which command this table was created. I will be writing so create table AMP. Here you are. So interesting thing available in MySQL कि आप एक कमांड लेकर देख सकते हो टेबल किस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या है, और कमांड लेकर ये भी देख सकते हैं कि उसका किस कोड से बना, उसका एसक्यूएल आप देख सकते हैं. ठीक है. सो थोड़ा सा डिफर करेगा जो जिससे हमने बनाया था, क्योंकि सर्टेन थिंग्स इज एडेड बाय द माइस्कल. सर्टेन थिंग्स जो उसने ऐड किया है वो मैं बता दे रहा हूँ. पहला ऐड किया है कैरसेट UTF-8 MB4. ये जब हमने इंस्टॉल किया था तो उस समय ये कैरसेट सेट हो गया था. ये डिफॉल्ट कैरसेट होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है ना. UTF-8 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. डिफरेंट लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा तो उसका अपना कैरसेट अलग होता है. ठीक है. कॉलेट भी वही है ना. ये UTF-8 लग रहा है. ये बोथ shows the character set and the language that has been uh, this is the language of this particular software that we have installed. But if you can create a database with different languages here, so ये सॉफ्टवेयर के अंदर का मामला है. हम ये कैरसेट चेंज भी कर सकते हैं, बट most of the time it is same. It also needed to be changed on different operating system. अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस कैरसेट को बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ये MySQL इंस्टॉल होता है उसका अपना एक डिफॉल्ट कैरसेट होता ही है. तो ये सिंपली समझ लें इंग्लिश के लिए. और यस, ये इंपॉर्टेंट चीज इधर है, दैट इज द इंजन. तो माइस्कल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई एक इंजन होते हैं, डेटाबेस इंजन यानी मेन कोर जो उसके सॉफ्टवेयर हैं. तो एक इंजन होता है InnoDB, इंजन होता है ISAM ना. ये दो पॉपुलर इसके इंजन होते हैं. डिफॉल्ट इंजन जो होता है InnoDB होता है, जो हमारा करंट वर्जन का है. ये रिमेंबर रखिए कि आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. यू सिंपली
don't give this command while creating your table because the most powerful engine is InnoDB. इसमें ही फॉरेन की जैसी चीजें जो होती हैं इम्प्लीमेंट होती है। दूसरा जो इंजन होता है आईसैम वाला, उसमें ये फॉरेन की नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई योर इंजन शुड बी InnoDB, बट यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स। ये आपके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया उसमें डिफॉल्ट है। हमने सिर्फ यहां से यहां तक लिखा था, है ना। दैट वाज आवर कमांड, यू कैन सी इट हियर। ये पिछला दिन जो जहां से हमने रन किया था, ये वाला था, दो हमारे पास टेबल था। दैट वाज, दिस वाज आवर कमांड। हमने कहीं इंडियन ऐसा कुछ नहीं लिखा था। आपको नहीं लिखने की जरूरत है। डिफॉल्ट एंड अ बेटर ऑप्शन विल बी देयर, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इंजन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट इंजन है InnoDB, दैट इज मोस्ट पावरफुल एंड लेटेस्ट। ओके, तो यह हमने देखा ना, एक is a very interesting command with which we can see the SQL query with which the table has been created. मैं it is मैं DPT के लिए भी करके देखता हूँ। DPT के लिए हमने क्या कमांड दिया था? So this was leaving this, ये हमने नहीं लिखा था ना। create table department number, integer not null, dname, location, प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर को बनाया था, ठीक है। हमने इसका कोई कांस्टेंट नेम नहीं रखा था। और एक और टेबल बना हुआ था प्रोडक्ट्स के नाम से, आई होप, है ना। तो उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको हमने किस कमांड के साथ बनाया था? वी कैन सी, I hope everyone found this useful. This command is so useful there. आप किसी भी समय टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आपको कहीं पर नोट डाउन करके रखा हो, वहां पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी इट हियर। ओके, सो आज हमारा एजेंडा है कि ये टेबल बनाने का कमांड तो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम बना सकते हैं, ये हमने कल सीखा। बट देर इज वन मोर थियोरेटिकल थिंग हियर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा डिस्कशन उसमें करना पड़ेगा और थोड़ी थियोरेटिकल होती है। ये होता है जिसको बोला जाता है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट, बट रिमेंबर इफ यू आर क्रिएटिंग RDBMS, आपको डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए। आई एम जस्ट मेंशनिंग इट इन अ ब्रीफ, बट आई मस्ट टेल यू दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ही एसेंशियल है RDBMS को समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना, ठीक है। डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना आना चाहिए। और देयर आर डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। और ये एसक्यूएल के या RDBMS के इंटरव्यू में पूछा जाता है। द थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इवन इन यूनिवर्सिटी यू आर डूइंग DBMS कोर्स, आपका पेपर होगा। सो दोज हु हैव डन कंप्यूटर साइंस से होंगे, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन सुना होगा, पढ़ा ही होगा। ओके, इज देयर एनीवन familiar with this word normalization, first, second, third normal form? Yes, anyone? Normal form, first, second, third normal form? Yeah, ब्रिज बिहारी, यस। तो आप अपने बीटेक में होंगे या BCA में होंगे, जहाँ भी होगा DBMS के पेपर होंगे, अपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या करते हैं, व्हाट रियली RDBMS में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये होता है कि आप अपने टेबल को किस तरह से डिजाइन करेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं कि आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखना है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रखना है और उसके डिपार्टमेंट का भी डिटेल रखना है। तो अगर आप एक टेबल में रखेंगे
तो फिर वही प्रॉब्लम जो मैंने फर्स्ट डे बताया था कि हर एक एम्प्लॉय के सामने डिपार्टमेंट का सारा डिटेल भी एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी वांट दिस टू this information has to be broken into मल्टीपल टेबल। ये ब्रोकन अलग अलग टेबल में बांटना यही नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो ये हम दो टेबल में हमने यहाँ बांट लिया, ईएमपी और डीपीटी में बांट लिया, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गई। लेकिन इसको बांटेंगे, है ना, इसको डिवाइड करेंगे दो टेबल में सारे कॉलम्स को, तो क्या ध्यान रखेंगे, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या हुआ, जस्ट योर डेटा विल बी इन अ रो कॉलम मैनर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, आपका डेटा जो भी बनेगा, जो टेबल बनेगा वो रो कॉलम मैनर में होगा, ऑब्वियसली टेबल ऐसा होता है। दूसरा, एक सेल में, एक रो एक कॉलम में एक ही वैल्यू होगा, ठीक है, इट इज एज्यूम्ड। तो कोई भी टेबल आप बनाते हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, तो यहाँ पर मामला हो जाता है की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट का, इसको समझ लेंगे तभी ये नॉर्मल डिफरेंट फॉर्म समझ में आएगा, ठीक है। तो की एट्रीब्यूट क्या है, जैसे यहाँ पर मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ ईएमपी को, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू फॉर फ्यू मिनट्स, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलो प्रोडक्ट्स वाला भी कंप्लीट करें, अच्छा ठीक है, मैं प्रोडक्ट वाला भी बता दूंगा। चलो, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर डिपेंड करता है एम्प्लॉय नंबर पर, हर एक एम्प्लॉय नंबर का अलग डिपार्टमेंट होगा। कमीशन, सैलरी, तो ये एम्प्लॉय ई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, ये सारे के सारे जो है ये नॉन की हैं। और एम्प्लॉय ईएमपीएनओ क्या है, ये की है, द प्राइमरी की है। रूल ये होता है कि एक प्राइमरी की हो और रेस्ट ऑफ जो फील्ड है ना, वो क्या करें, प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करते हो। थ्योरी में जाओगे तो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो नॉन की का फंक्शनल डिपेंडेंसी इम्प्लाई नंबर पर होगा। लॉट ऑफ थ्योरीज आर देयर, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, है ना। एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग थिंग ऑन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर मैं ज़्यादा जा रहा हूँ, कमांड्स पर ज़्यादा जा रहा हूँ। But in a long course, obviously, we really talk about normalization, different normalization का assignments भी रहता है। जब हम RDBMS को डिटेल में पढ़ते हैं तो it is there कि हम कैसे different normal form क्या होता है और कैसे अचीव करते हैं, कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। टू हो गया, टू का मतलब क्या है, सारे नॉन की जो है की पर डिपेंड करे, ये हो गया सेकंड लेवल का सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल होता है, यानी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तभी सेकंड। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी नॉन की किसी दूसरे नॉन की ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करता हुआ नहीं होना चाहिए, बस ये होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जनरली क्या होता है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक इनफ माना जाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इवन बेटर। उसके आगे फिर वो थोड़ा ज़्यादा लंबा थ्योरी हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट इज कॉल्ड द बायस्कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। एंड मल्टी लेवल डिपेंडेंसी के लिए अगर जो लोग बीटेक या बीसीए एमसीए में डीबीएमएस पढ़े होंगे तो वो उनको मेरे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, उन्होंने वो वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, एग्जाम में लिखा भी होगा, ठीक है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का यूज करके। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट या द थिंग इज दैट योर टेबल शुड बी इन नॉर्मल फॉर्म, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। ओके, सो this is the structure. We have created tables, and now our next topic is to how to insert data into it. और ये भी देखेंगे कि प्राइमरी की और दूसरे अगर इसमें डिफाइन कर दिया गया है, तो अगर हम
इसके सही डोमेन में डेटा नहीं डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, सो let's start with the inserting the data. So what is the command to insert the data? What is the query? What is the function to insert data? So let's see here. It's very, very simple. This is the structure. Simple. But मैं इसको बताता हूँ. इसका दो स्ट्रक्चर होता है. दो तरीके से करते हैं. आई रिपीट, मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे. ऊपर वाला तो पिछले दिन की कमांड्स है, सो जस्ट लीव इट देयर. मैं ऊपर ला रहा हूँ, आप इसको सिर्फ देख लीजिए. या कंफ्यूजन हो रहा है दूसरे कमांड के साथ, सो आई एम पुटिंग इन अ न्यू फाइल. So the structure is insert into EMP, that is the structure table name values. दो तरीका होता है. पहला तरीका ये है जो सिंपल वाला तरीका है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना होता है कि ये जो वैल्यूज आप इंसर्ट करेंगे ये उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने टेबल में कॉलम को डिफाइन किया है. ठीक है, तो ये हमने ईएमपी डिफाइन किया है. सबसे पहले ईएमपी नंबर रखा है, इसलिए सबसे पहले ईएमपी नंबर है. दूसरा हमने ई नेम रखा है, तो दूसरा ई नेम है. थोड़ा कलर अलग दिख रहा होगा, है ना. आई थिंक थोड़ा सा ये लाइट हो गया है ना. सो कोई डार्क कलर ले लेता हूँ. चलो ये बल्ब ब्लैक वाला ही थिंक. सो यू कैन सी ये पहला जो वैल्यू है EMP NO का है. दूसरा जो है ये डेसिमल था, नंबर में रखा गया. दूसरा जो वैल्यू है, एक मिनट ऊपर लाइए. दूसरा वैल्यू जो है वो है नेम का, स्मिथ है. तीसरा इसका जॉब है क्लर्क. ठीक है, मैनेजर. देन उसके बाद ये हायर डेट, डेट के फॉर्मेट में होगा. ये माइस्कल का डेट का फॉर्मेट है. ईयर 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 4. देन मंथ. देन डेट. ठीक है, सैलरी नंबर है. ठीक है, और अगर किसी का वैल्यू नहीं अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर कमीशन इसको नहीं मिलता है, तो वहां पर नल लिखा है. नल कोट में नहीं लिखना है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी दिखाता हूँ. इट विल बी बेटर. नहीं, इसमें भी वैल्यू वाला नहीं लिखा हुआ. ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ. सो और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर टू EMP ये लिखेंगे, है ना. एक मिनट, इंसर्ट आई रह गया. इसमें क्या करते हैं, मैं इसका एक कॉपी बना रहा हूँ एक्चुअली. और इसमें क्या होगा, वैल्यूज के पहले, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में सारे फील्ड का नाम रहेगा. इंसर्ट इनटू EMP, और जो इसके जो फील्ड है उसका नाम रहेगा. आई एम जस्ट ट्राइंग इट. EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा MGR कॉमा हायर डेट कॉमा सेल कॉमा com for commission and DPT NO. अब this is the
अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हुआ, पहले जिसके फील्ड का नाम दिया, उसके बाद इसके वैल्यूज का नाम वैल्यूज दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने फील्ड को छोड़ दिया था। तो अगर आप ऐसे देंगे तो आपने टेबल जब डिफाइन किया था उस समय वाला उस वाला स्ट्रक्चर को रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि सपोज आप एम्प्लॉय नंबर को, ठीक है, लास्ट में एंट्री कर रहे हैं, इट इज अलाउड। ये वैल्यू जो है इसको कट करके मैं यहाँ पर लास्ट में दे दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो एंट्री करेंगे वो उस सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में आपने ये यहाँ पर ये डिफाइन करके रखा है। अदरवाइज उस सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में आपने टेबल में डिफाइन कर रखा है। अदरवाइज क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपने फील्ड का नाम दे दिया तो उसके मैचिंग आप यहाँ पर देंगे। फील्ड का नाम नहीं दिया तो डिफाइन किया हुआ जो स्ट्रक्चर था उसके मैचिंग देंगे, सो दैट एवरी वैल्यू शुड गो टू द its corresponding columns. Is it clear to everybody? Any question? Is it very clean thing, है ना? बहुत लॉजिकल है कि अगर आपने फील्ड का नाम दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला किसको जा रहा है, दूसरा किसको जा रहा है, तीसरा किसको जा रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, सिंपल। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि पहला किस में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, आप क्या करना है, जिस स्ट्रक्चर के साथ क्या बोलेंगे, जिस जिस सीक्वेंस में ये टेबल में कॉलम्स को डिफाइन किया गया था उसी सीक्वेंस में आप इसको डालेंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि डेटा कैसे इनपुट किया जाता है। अभी मैं करूंगा, इसमें डेटा को इनपुट करता हूं और वन एट ए टाइम करना है। चलो, मैं ये डेटा वाला पहला वाला लाइन है उसको मैं अभी इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। एक एक करके करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जस्ट आई एम ट्राइंग टू पुट दिस कमांड हियर। सो यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स चेक्स द नंबर, वहां से मैंने लाया है, थोड़ा सा इसमें एरर है ऑलरेडी, है ना। ये, ये पहला तो है कि इसको एक लाइन में लेना चाहिए। एंड देयर इज वन मोर प्रॉब्लम हियर, वहां पर जो फील्ड सीक्वेंस बना हुआ है, ओके, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यू कैन, यहाँ पर जो हमने क्या किया हुआ है कि वन बाई वन जो है पूरा का पूरा सारा का सारा वन आफ्टर अनदर यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, एक जस्ट ट्राइंग टू पुट इन अ लाइन, एक लाइन में इसको लिख लेता हूँ पहले। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू डाइल्यूट द टेबल, जो स्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है मैं वही स्ट्रक्चर का बनाना चाहता हूँ, बिकॉज जब हम क्वेरी करेंगे तो ये बहुत वेल डिफाइंड है, ये टेबल, उस स्ट्रक्चर को हम चाहते हैं कि मेंटेन रखें। ओके, emp dpt emp underscore dpt 99 कंट्रोल वी, और वहां से पेस्ट करके लाने में प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। ये जो ये जो कोड्स है ना वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ऐसा रीजन क्या होता है
कि अलग अलग एडिटर पर ये जो कोट्स होते हैं वो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसका आस्क की वैल्यू अलग होता है। यू कैन सी कि जब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसको, तो ये अलग हो गया है ना। नल में नहीं लगाना है, डेट में लगाना है, नंबर में नहीं लगाना है। तो सिंपली कॉपी पेस्ट करने के कारण ये मामला था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझने की चीज है, ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। माय कमांड वाज करेक्ट। ठीक है, ये जो कमांड हमने यहाँ पर लगाया था करेक्ट था, लेकिन ये एंट्री नहीं लिया। ठीक है, सो ये समझना है कि एंट्री क्यों नहीं लिया। दिस इज क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर, क्या हुई है कि जब हमने टेबल बनाया है, जस्ट कम बैक अपने डिजाइन को देखिए, जब हमने टेबल बनाया है तो उसमें क्या किया हुआ है कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है, जस्ट समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने जो एम्प्लॉय बनाया हुआ है उसमें एक फील्ड है जो कि फॉरेन की है। ठीक है, क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। और डिपार्टमेंट नंबर का नंबर कहाँ से आ रहा है, डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एफ के डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, इसको डिपार्टमेंट नंबर वो जो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 20 का या 10 जो भी है यहाँ पर 10, वो उसको डिपार्टमेंट नंबर का टेबल ही नहीं मिला। तो हमें क्या करना था, हमें डिपार्टमेंट वाले टेबल में वैल्यूज पहले डालने हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉरेन की हमने लगाया है। ठीक है, सो ये प्रीवियस डे की जो बात कर रहा था उसी को मैं बता रहा हूँ क्या करना है कि व्हेन यू क्रिएट टेबल विथ फॉरेन की, तो आपको वो टेबल पहले बनाना है। अगर ये विदाउट की बनाते तो ये आ जाता है ना। तो अगर आप टेबल को बनाते हैं फॉरेन की के साथ, तो जिस टेबल पर ये डिपेंड करता है वो टेबल पहले से होना चाहिए। इवन आप ये पहले बनाते तो बनते ही नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले डिपार्टमेंट बनाया था फिर एम्प्लॉय बनाई थी। लाइकवाइज हमें एंट्री करते समय भी पहले डिपार्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर एम्प्लॉय की एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर है वो क्या है, फॉरेन की है। यानी डिपार्टमेंट नंबर किसको रेफर करता है, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर के डिपार्टमेंट नंबर को, डीपीटी नंबर को रेफर करता है। ठीक है, नो नो, null value is not extra, it is the problem of, it is the problem of foreign की। ठीक है, तो इंसर्ट भी हमें पहले डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। ठीक है, तब इसको डिपार्टमेंट नंबर 20 इसको मिलेगा। अगर हमने फॉरेन की नहीं बनाया होता तो ये कमांड रन कर गया होता। ठीक है, सो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या हो रहा है, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस 10। इसके लिए क्यों, क्योंकि ये जो है आप बता रहे हैं कि किस में जाना है, डीपीटीएनओ में जाना है, और डीपीटीएनओ बना हुआ है फॉरेन की। तो जिस टेबल में आप जिसको रेफर करते हैं उस टेबल में वो डेटा है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फुलफिल नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई this code will not run. But so what we have to do, first we have to do the entry in the table where this tables field are dependent। किस पर डिपेंड करता है ये 10, किस पर डिपेंड करता है, डीपीटी पर डिपेंड करता है। तो पहले हमें किस में वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा, डीपीटी टेबल में। आई होप सबको समझ में आ रही है बात। मैंने जानबूझ के पहले एंट्री की थी टू शो कि फॉरेन की होने से क्या होता है ना। मैंने जानबूझ के ईएमपी वाला पहले डाला था, और ये जो सिंटेक्स एरर हो रहा था इट वाज बिकॉज कि आप नोटपैड पर या किसी दूसरे वर्ड में भी अगर आप कमांड को लिखकर पेस्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। किस किस चीज के लिए प्रॉब्लम आएगा, ज्यादातर प्रॉब्लम आता है ये कॉमा के लिए, इवन इस ब्रैकेट के लिए भी प्रॉब्लम आता है, कोट एंड डबल कोट के लिए भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट पर जाकर इसकी यहाँ का आस्की वैल्यू कुछ और होता है, वहां पर आस्की वैल्यू कुछ होता है, लेकिन दिखता है दोनों है वो कोट वैस जैसा ही दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। इवन आप वर्ड में जाकर जो कोट लगाते हैं, आई शो यू, ये सिलेबस है, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पर अगर आप इसको आप डबल कोट में डालेंगे
तो आप देखो कि ये जो है ना, ये लैंग्वेजेस में अलग तरह से काम होगा। ये इसका कोड का वैल्यू कुछ है, अपने आप क्या हो रहा है, इधर ये इनसाइड के साइड में चेंज हो रहा है, ये वही नहीं है, ठीक है। ऑटो कंप्लीशन करेक्शन हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स हो रहे हैं। तो ये जो कोड है, इसका आस्की वैल्यू, आई होप लोगों को समझ में आता हो, आस्की वैल्यू है ना, वो दोनों एक्चुअल में वो नहीं है, दिख रहा है कोड लेकिन वो कोड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कमांड में। तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर कोड चाहिए था, यहाँ पर कुछ और मिल गया इसको, दैट इज वाई। ओके, सो कमिंग बैक, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, पहले डीपीटी में एंट्री करनी है। हमें पहले किस में एंट्री करनी पड़ेगी, डीपीटी में, डीपीटी के टेबल में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बना के रखा है, क्योंकि एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रॉपर डेटा रहेगा तभी हम सब तरह के कमांड रन कर सकेंगे। इसलिए रैंडम वैल्यू मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। रैंडम वैल्यू डाल सकते थे लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ जानबूझकर। आई जस्ट वांट टू मेंटेन दिस वैल्यूज, क्योंकि ये बहुत ही वेल डिजाइंड ये टेबल है। इसमें आप सेल्फ ज्वाइन, डिफरेंट टाइप का ज्वाइन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत वेल डिफाइंड ये टेबल है, दैट इज वाई आई एम जस्ट यूजिंग इट, ठीक है। तो चलो, एक वाला में ये हो गया, दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये स्ट्रक्चर यहाँ है। और इसको मुझे क्या करना चाहिए, इसको मुझे एंट्री करनी चाहिए यहाँ से, ठीक है ना, नीचे लिखता हूँ यहाँ पर। ये हो गया दूसरा वाला डिफाइन, देखिए, इंसर्ट इनटू डीपीटी, यहाँ पर फील्ड का नाम है और फिर यहाँ पर वैल्यू है। तो ऐसी हालत में किसी भी फील्ड को आगे पीछे कहीं भी रख दें, वैल्यू अकॉर्डिंगली रख ले कॉरस्पॉन्डिंग, इट विल वर्क, ठीक है। सो दिस इज ओके कमांड, बट लेट्स चेक कि हमें इसके कोड को चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, विल सी। ओके, क्योंकि मैंने इसका लैंग्वेज एसक्यूएल कर दिया था। सो अभी आराम से एंट्री हो गई, ठीक है। तो वन बाई वन आप सारा कर सकते हैं एंट्री, है ना, यहाँ तो। लेकिन यहाँ पर आप एक बार में बहुत सारे करना चाहते हैं तो कॉमा लगा लगा के एक बार में ढेर सारे वैल्यूज आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अच्छा, ऐसा करता हूँ कि यही एंट्री मैं दोबारा करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू दिस एंट्री अगेन, ठीक है। आई एम जस्ट पेस्टिंग इट, करने की क्या जरूरत है, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आई एम पुटिंग इट हियर, पहले कि इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये कोट वाला प्रॉब्लम नहीं आए। आई एम ट्राइंग टू पुट अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, लेगा। The theory you want about this, say, normalization and all these things. Okay, okay, I will talk about it. ये हमारा जो बड़ा जो सिलेबस होता है उसमें सारी चीजें होती है, a lot of things there, database design and normal form and everything. And ठीक है, I will talk about that after running this code. So देखिए क्या हो रहा है, I'm just putting a duplicate values here, ठीक है, counting New York. It is not allowing, it is saying duplicate entry for 10 for the key dpt primary. प्राइमरी की क्या होता है, वो यूनिक होता है, ठीक है, नॉट नल एंड यूनिक होता है। सो वी कैन नॉट हैव another department, another 10 here because it is primary key, dptno क्या है, प्राइमरी की है, इसीलिए ये दोबारा वो वैल्यू एंट्री नहीं होगी। यू कांट हैव टू डिपार्टमेंट विद द सेम नंबर, ठीक है। सो और डीपीटीएनओ को हमने बनाया है प्राइमरी की, डेट इज वाई ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सो यू हैव सीन यहाँ पर क्या मैसेज दिया, और ये काउंटिंग और न्यूयॉर्क अगर फिर से आ जाए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे कॉलम में हम एंट्री करना चाहेंगे, एंट्री हो जाएगी क्योंकि इसको हमने यूनिक नहीं किया है। और प्राइमरी की जो होता है वो नॉट नल एंड यूनिक होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज नॉट टेकिंग, ठीक है। सो ये सेकेंड एंड थर्ड ये हम
दे सकते हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग द होल वैल्यूज। मैं एक बार में ही रन कर लेना चाहता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। हाँ, तो इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लाया हूँ, ये फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, and एक जो है white is showing yellow, just check, या ठीक है, नंबर है इसलिए है, and put them one after another, and this 41 after another. Yeah, why ये 20 is looking like that? We have to check, क्योंकि कलर से हमें आइडिया मिल जाता है कि कुछ एरर तो नहीं हो रहा है। और मेन एरर जो होता है वो इस जब आप कहीं और से लाते हैं तो ये कोड का ही होता है। ठीक है, और कोई ज़्यादा कोई एरर नहीं होता है। mm, 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 it looks okay if I copied it properly. values, okay, values सारा कीवर्ड कैपिटल में रखा हुआ है। चलो रन करके देखते हैं। data too long for column, dname at this, it is not the problem, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डेटा इज नॉट टू लॉन्ग, रिसर्च हमने उसका कितना साइज रखा है, अगर उस साइज से लंबा है तो भी ले लेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वेर कैर है इट विल टेक द नेम, नो प्रॉब्लम। 14 इज देयर, इट इज सिंपली क्या है, कहीं पर कोई स्पेस है इसका प्रॉब्लम है। सो वी विल बी पुटिंग दिस थिंग्स वन बाई वन, नो प्रॉब्लम। हम इसको क्या कर सकते हैं, वन बाई वन एंट्री कर सकते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि ये वाला ऑलरेडी जा चुका है ना। तो सेकंड वाला रन करेंगे और ये वाला जो है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो भी यही है, डीपीटीएनओ। आप डिस्क्राइब करके देख लीजिए, दीज आर द प्रैक्टिकल्स थिंग्स जो समझना है ना। डीएससी डीपीटी के टेबल को देख लीजिए और देख लो, पहला क्या है, डीपीटीएनओ है, दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट का नाम है, और तीसरा जो है लोकेशन है। तो आप इस फॉर्मेट में ही अगर आप डाल रहे हैं तो ये पोर्शन है, इसको आप अभी आप छोड़ सकते हैं डायरेक्टली, जो है आप डीपीटी है, हाँ डीपीटी एंड, और डायरेक्टली आप वैल्यूज करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1/1 करके डालता हूँ, फर्स्ट वाला को हम दोबारा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, insert into dpt values. I'm only a little bit surprised because of this color. तो मैं एक बार में एक ही डालता हूँ। डुप्लीकेट, ओह ये तो पिछला वाला है, कॉपी नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे ये वाला नहीं चाहिए था ना, इससे मुझे डिलीट कर देना था। ये तो हमने कर लिया है ना। 1 एट ए टाइम, पहले इसको रन करना है। सो जस्ट टेक इट। आई होप, नहीं इधर देखिए प्रॉब्लम है ना, कॉमा जो है उसमें प्रॉब्लम हो गया है। सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ठीक है, तो प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है, कहीं आप लिखेंगे तो इसके अंदर जो कोट्स होते हैं उसके कारण प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं सब क्वेरी को अलग अलग बना दे रहा हूँ और उसके बाद एक टेक्निक बताता हूँ, ये सारे के सारे एक बार एंट्री कैसे हो पाएंगे। ठीक है, चलो, वी हैव द प्रॉब्लम हियर कि हमें सबका कोड को ठीक करना पड़ेगा वन बाय वन। ठीक है, सो जनरली हमें यहाँ पर डायरेक्टली लिखना होता है ना। मैं ये जस्ट टू सेव द टाइम
उसको पहले से लिखा हुआ क्वेरी चला रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, उसके ऊपर ही काम करना है, रैंडम वैल्यूज रहेगा। सो वी विल लेटर ऑन इसके ऊपर बहुत सारे काम करने हैं, है ना। तो हमारे पास टेबल करेक्ट नहीं रहेगा तो फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। इसलिए हमें डेटा क्या चाहिए, प्रॉपर वे में चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा, मेरे पास तो दूसरा डेटा ऑलरेडी है। सो वी आर, चलो एक और एंट्री कर देता हूँ, और दूसरा का मैं दूसरा बेटर तरीका बताता हूँ जिस तरह से एक्चुअली में वर्क किया जाता है। हम्म, यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है क्लियरली। सो आई विल गो इन अ मच सेफर वे। मैं हमेशा इसको चेंज सारे का कर ही देता हूँ। सो दिस कोड इज डिफरेंट, ठीक। जस्ट देख लें, कैसे देखेंगे। नेक्स्ट डे से हमें इस सेलेक्ट के ऊपर ही सारा काम करना, ज्वाइन करना सीखना है ना। तो डेटा होना चाहिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EM, सॉरी DEPT, है ना, DEPT। सो आवर डेटा इज क्रिएटेड। लेकिन एक एक करके एंट्री नहीं करना है, ढेर सारी एंट्री अगर आपको एक बार करना है तो आपने क्या करना होगा कि इसको एज ए एसक्यूएल एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। और दो तरीका होता है, अगर आप कमांड लाइन पर करेंगे तो एक कमांड होता है दैट इज कॉल्ड द सोर्स कमांड। उसके सारे आप पूरा इस फाइल का नाम दे दो, पूरा फाइल जो है एक बार में रन कर जाएगा, ठीक है। एंड अनदर टेक्निक इज हियर, दैट इज वेरी वेरी एडवांस टेक्निक। इट इज यू यूज एसक्यूएल वर्कबेंच। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा आपके पास एसक्यूएल की फाइल हो, स्क्रिप्ट फाइल बोलते हैं, ठीक है। आप सुनिए, पूरा ये एसक्यूएल की फाइल को आप एक बार में रन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास शायद कोई होगा, मैं देखता हूँ अगर, तो फाइल एंड यहाँ पर है एसक्यूएल की स्क्रिप्ट, आप ओपन कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, इसको रन नहीं करूंगा। सो वी कैन राइट द होल क्वेरी एंड एवरीथिंग हियर इन वन लॉन्ग फाइल। हमने इसको क्रिएट किया और एक बार ले जाकर इसको रन कर देंगे। सो एवरीथिंग विल बी डन इन वन गो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। बड़े लार्ज आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू हैव कलेक्टेड इट, जस्ट आपको क्लीन कर लें एंड जस्ट डायरेक्टली वन कमांड में आप सारा का सारा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल से लेके इंसर्ट एवरीथिंग इसमें एक बार में हो जाएगा। इनफैक्ट द टेबल दैट द नोटपैड कमांड दैट आई हैव क्रिएटिंग इट इज, ये इसी तरह से बैकअप करके बनाया गया है, ठीक है। इसको आप एक एक बार में यहाँ पर पेस्ट करके रन कर सकते हैं, ओके। Okay, okay. So yeah, so we are almost the time is getting up. Tomorrow we will be, ये data मेरे पास already inserted है, so there will be not much loss of time. Tomorrow we will be, this data is already there in my other schema. I have already filled it here. So next day we will be start querying the data, है ना। टेबल को क्वेरिंग करना सीखेंगे, एंड दोज who are talking about this theory and those things, so I will talk about that in detail tomorrow. ये क्या नाम है, अनुज कुमार, okay, अनुज कुमार and Papri, okay। So just we are ending this session, okay। So just join tomorrow and we will be starting very interesting thing, just getting filtering data, joining the table, and all the data analytics type of things that we will be doing with this data. This and other data, I will even bigger table we have, we will be seeing very very interesting thing, okay। So thanks for joining. We are just ending this session.